بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صحافی ایک معاشرے کی آنکھ کان کا کردار ادا کرتے ہیں۔ کہیں پر مسائل ہوں تو پھر فوری طور پر عوام کی اور ان مسائل زدہ لوگوں کی جو ہے وہ زبان بنتے ہیں اور ان کے مسائل اعلیٰ ایوانوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ فوری طور پر ریلیف ملے۔ لیکن اگر ہم بات کریں صحافت کی تو صحافت کو ریاست کا ایک ستون بھی مانا جاتا ہے، لیکن یہی صحافی جب کوئی سوال کرتے ہیں تو پھر ان کو اس سوال کی قیمت تشدد کی صورت میں برداشت کرنا پڑتی ہے یا چکانا پڑتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ سے ایک سوال کیا جاتا ہے جو ان کو اور ان کے کارکنان کو ناگوار گزرتا ہے، جس کے بعد وہ اسلام آباد کے مقامی صحافی پر بدترین تشدد کرتے ہیں۔ یہ تشدد کے بعد ہماری صحافتی تنظیمیں، ہمارے صحافی کیا کہتے ہیں، آئیے چلتے ہیں اور اس تمام صورتحال پر صحافیوں کی کیا رائے ہے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ بٹ صاحب، ہر دور میں صحافیوں کو جو ہے وہ سوال کی قیمت چکانا پڑتی ہے، کبھی ایف آئی آر کی صورت میں، کبھی پیکا ایکٹ اور کبھی پھر تشدد۔ کل بڑا ایک افسوسناک واقعہ آیا، بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ سے سوال کیا گیا جس کے بعد اسلام آباد کے صحافی طیب بلوچ پر بڑا بہمانہ تشدد کیا، اس پہ کیا کہنا؟ بہت شکریہ میں صاحب، آپ نے ساری سوال میں یہ حقیقت کھول کے رکھ دی کہ صحافی، پاکستان کے صحافی جو ہے وہ ہر دور میں ہی مشکل میں رہے ہیں۔ یہاں پہ وار اگینسٹ ٹیررزم ہوا، اس میں بھی ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ ان کو شہادت ہوئی اور ان کو قتل کیا گیا، اور مطلب ایک طرف اسٹیٹ جو ہے وہ ان کو پروٹیکشن نہیں دے پاتی، دوسری طرف جو ملک کے اندر دہشت گردی برپا کر رہے ہوتے تھے تو ان کو روکنی پڑتی، اور اس کے بعد وہ پھر صحافی جو ہے وہ لقمہ اجل بنتے۔ اور یہ جو اس وقت پولیٹیکلی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ افسوسناک ہے۔ یہ اس لیے زیادہ افسوسناک ہے کہ کبھی پاکستان کی سیاست میں اس طرح کا رویہ نہیں دیکھا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسی سیاست آئی ہے جس میں گالی کو، تشدد کو، ہیٹ سپیچز کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا رول جو ہے بانی چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں وہ اور ان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کا ہے کہ جنہوں نے اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں کل کو ان کو بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سر، صحافت نے ہر دور میں صحافی نے سوال کی قیمت چکائی۔ کبھی عامیت کے دور کی اگر بات کریں یا جمہوریت کا بول بالا ہو، صحافی کو سوال کرنا مہنگا پڑا۔ اسلام آباد کے اندر ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک سوال کی قیمت میں کارکن ایک سیاسی جماعت کے حملہ ور ہو گیا۔ دیکھیں، پتہ کیا ہے، پاکستان کے اندر دو تین چیلنج جرنلسٹوں کو اب سے نہیں ہے، پچھلے 15-20 سال سے یہ نیا طریقہ کار ہمیں دیکھنے میں ملا ہے۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز بعد جو ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یا جو کچھ گروپس ہوتے ہیں جن کو برا لگتا ہے کویشچن کرنا صحافی کا، وہ حملہ کرتے آ رہے ہیں، مگر اس میں جب پولیس ہوتی ہے وہ بھی برا مناتی رہی ہے۔ تو ہم نے تو ہر دور میں اس کی قیمت بھی چکائی ہے، لیکن سوال کرنا صحافی کا بنیادی حق ہے، اور سوال کرنے سے ہی خبر بنتی ہے۔ تو اگر ہم سوال ہی بند کر دیں گے تو خبر کیسے دیں گے، اور خبر نہیں دیں گے تو نوکری کیسے رہے گی، اور نوکری نہ رہی تو جرنلزم کیسے رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سوال کرنا نہ ہم نے بند کرنا ہے، ان کی جو مرضی وہ کرتے رہیں، ہمیں وی ڈونٹ مائنڈ۔ احمد صاحب، سیاسی اگر فرقوں کی بات کی جائے یا سیاست کی، تو انہیں جمہوری لوگ کہا جاتا ہے، جو تنقید برداشت کرنا ان کا فرائض میں بھی شامل ہے، حق بھی ہے، لیکن ایک صحافی کا سوال اور ایک مخالف پارٹی کی تنقید میں زمین آسمان۔ دیکھیں، صحافی کو جو ہے نا سوال کرنے پہ تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، گالیاں بھی کھانی پڑتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ سوال کرنے پہ بہت سارا اس کو ٹاسک پہ لیتے ہیں، لیکن صحافی سے فزیکل ہو جانا ایک ایسی سیاسی جماعت کا کہ کارکنوں کا جو اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک پارٹی کہتی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ کو خود اس کو روکنا چاہیے تھا اور ان کو ٹالرنس رکھنی چاہیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے آنے کے بعد یہ ٹالرنس سیاسی جماعتوں کے اندر مزید کم ہوئی ہے، تو یہ تو خطرناک رجحان ہے۔ بہرحال وہ جیسے بھی ہیں، ہم نے تو سوال کرنا ہی کرنا ہے۔ صحافیوں کے اوپر تشدد دیکھنے میں آ رہا ہے، کوئی بھی دور ہو، چاہے جمہوری ہو چاہے عامریت کا دور ہو، صحافی کو سوال کی قیمت جو ہے وہ یا تو تشدد کی صورت میں چکانا پڑتی ہے یا ایف آئی آر اور پیکا ایکٹ کی صورت میں اس کو جو ہے نا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہر دور میں تختہ مشق جو ہے صحافی بنتا ہے، ہمیشہ صحافی پہ ہی
हुकूमत हो या अपोजिशन हो अपना गुस्सा निकालती है। जब सहाफ़ी अपोजिशन के हक़ में सवाल करे तो वो बड़ी अपोजिशन को अच्छा लग रहा होता है, और जब वो हुकूमत में आ जाती है तो फिर वही सहाफ़ी उन्हें बुरा लगने लगता है जब वो उन पर तनकीद करता है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हुकूमत के और ऐवानों में पैमाने जो है ना अपने अपने हैं। जब हुकूमत में होते हैं तो वो यही सोचते हैं कि हर बंदा हमारी फेवर में बात करे। इसी तरह ये जो तैयब के साथ हुआ है, इसमें भी यही बात है कि उन्होंने अलीमा खान साहिबा को सवाल किया, उनको मिजाज को नागवार गुजरा कारकुनों के, और उन्होंने जो है ना उसके साथ ज़्यादती की। जबकि सहाफ़ी का हक़ है सवाल करना, चाहे वो जैसा भी हो। हाँ, उसमें इखलाक और बदतमीज़ी ना हो, कोई इखलाकी पहलू से वो अपने पहलू तय ना करे। इखलाक के अंदर रहते हुए अल्फाज का सही चुनाव करके सवाल करने का उसे हक़ है। मगर ये कोई नहीं हो सकता कि कोई सवाल करे और उस पर उसे तशद्दुद कर दिया जाए कि सिर्फ इस वजह से कि उनकी मर्ज़ी का सवाल नहीं था। शेख साहब, सहाफ़ी को सवाल की कीमत चुकानी पड़ती है किसी भी दौर में देख लें, चाहे आमरीत का दौर हो, चाहे जमहूरियत का, जिसका कहा जाए कि सवाल करना तनकीद जो है जमहूरियत में जायज़ है, लेकिन हर दौर में और ज़्यादातर सियासी जमातें जो अपने कारकुनान को बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा मुनज़्ज़म बताते हैं, उनकी जानिब से तनकीद जो तशद्दुद का सामना करना है। देखें, बात यह है कि सहाफ़ी ने वाकई आपने जैसे कहा कि हर दौर में लड़ाई झगड़ा और मार कुटाई का सामना सहाफ़ी को, ना सहाफ़ी का काम है सवाल करना। वो बेशक अब किसी को बुरा लगे, किसी सियासी पार्टी को, किसी मजहबी जमात को, किसी को बुरा लगे या नहीं, सहाफ़ी की ड्यूटी में भी शामिल है और सहाफ़ी का काम है सवाल करना। तो ये जो सा अभी पीछे वाक़या हुआ PTI का, इसकी तो हम भरपूर मजम्मत करते हैं। तैयब बलोच वाला वाक़या, बल्कि एक दो और जर्नलिस्ट है जिनको उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। हमने प्रेस क्लब से प्रेस रिलीज भी जारी की है और ये वतीरा बना लिया सियासी पार्टियों ने। वो बेशक PTI है, वो बेशक, मेरे ख्याल से ये इंतहाई नामुनासिब रवैया है ये PTI का भी। हम इंशाल्लाह अगर ऐसे ही इन्होंने रवैया रखा तो हम हर सतह पर एहतजाज करेंगे और इन पार्टियों की बाइकाट करेंगे। प्रेस क्लब में भी हम कोई इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई इवेंट नहीं होने देंगे अगर इन्होंने सहाफ़ियों के साथ यही रवैया रखा तो। राना साहब, सहाफ़ी को हर दौर में सवाल की कीमत चुकाना पड़ी, कभी जान की बाजी और कभी FIRs की सूरत में। कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आया, खुद को जो है वो जमहूरी जमात कहने वाले एक सवाल बर्दाश्त न कर सके और इस्लामाबाद के मुकामी सहाफ़ी तैयब बलोच पर जो है वो तशद्दुद किया गया। इसके बारे में क्या कहें? देखें आदिल भाई, ये जो कल का वाक़या है जो रूनुमा हुआ इस्लामाबाद में, उसमें इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो उतनी ही कम है। उसमें सियासी पार्टियां यही चाहती हैं कि हमारी मर्ज़ी के सवाल हों और हम अपनी मर्ज़ी के जवाब दें। देखिए, सहाफ़ी का काम होता है सवाल करना। अगर उसके सवाल में कोई थोड़ी सी तलखी थी या कोई इस तरह का मामला था तो वो इसका जवाब ना देते, वो कह सकते थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो उसके बाद उसके ऊपर गाली गलौज करना, क्योंकि जो अलीमा ख़ान हैं, आपको याद होगा कि ये गुज़श्ता 2-3 रोज़ कबल जो है उनके ऊपर जो है वो अंडा फेंका गया, जिसके ऊपर हमने मजम्मत की कि ये एक गैर अखलाकी हरकत है। जबकि अलीमा ख़ान की जानिब से सवाल के ऊपर पंजोता साहब की जानिब से गाली गलौज करना, तशद्दुद करना, ये इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ती जमातें हैं उनको भी इसके ऊपर खुलकर बात करनी चाहिए और इसके ऊपर जो है वो प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए। उसमें PFUJ को भी जो है अपना जो है अपना रोल अदा करना चाहिए और साथ ही साथ PUJs को और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद को भी जो है इसके हवाले से जो है उनका भी मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। इकबाल भाई, सहाफ़ी को सवाल की कीमत चुकाना पड़ती है। कभी केसेस की सूरत में कभी जान की बाजी हारते हैं तो कभी तशद्दुद की सूरत में। तैयब बलोच को सवाल की कीमत कल अलीमा खान साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशद्दुद की सूरत में चुकाना पड़ी, क्या कहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो है वो सहाफ़ियों की आवाज़ को और दबाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। अभी रिसेंटली जो कल वाक़या हुआ है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उन्होंने जो एक सहाफ़ी को तशद्दुद का निशाना बनाया, इसकी हम प्रेस क्लब ने ऑलरेडी लाहौर ने पहले ही मज़म्मत की है और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी का काम है सवाल करना और सियासतदानों का काम है उसका जवाब देना, और अच्छे सियासतदान वही होते हैं। और सियासी जमातों की तरफ से ख़ास तौर पर उनमें टॉलरेंस की फ़ज़ा उनमें ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैं देखने में आ रहा है कि
मुख्तलिफ सियासी जमातें जो भी हैं, और कभी जो वो बरसेकदार होती हैं तब टॉलरेंस ख़त्म हो जाता है, जब वो अपोजिशन में होते हैं तब भी उनमें टॉलरेंस जो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वो ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल PTI की तरफ से जो एहतजाज जो मुजाहरा किया गया है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, हम उसकी पहले भी मज़म्मत करते थे, अब भी मज़म्मत करते हैं। इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए, और अगर वो सहाफ़ियों को कहते हैं बर्दाश्त करना चाहिए, अच्छे सवाल करने चाहिए। अच्छे सवाल तो हम वही करेंगे जो मुल्क के लिए और कौम के लिए बेहतर होंगे। लिहाजा ये कल के जो वाक़े इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और बाकी दीगर जमातों से भी हम ये कहेंगे कि जहाँ पे भी ये जो इस किस्म के जो सवाल होते हैं वो आपकी कुछ ज़ाती अनाज के लिए नहीं होते, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होते हैं। और आपको अगर फ़र्ज़ करे आपको कोई सवाल अच्छा नहीं लगता तो उसको नो कमेंट्स दे दें। लेकिन ये सहाफ़ियों को तशद्दुद बनाना, उनको मारना, इस किस्म के वाक़यात में जो है बढ़ते जा रहे हैं, इसकी हम बड़ी तशवीश भी सहाफ़ियों में पाई जा रही है। और पाकिस्तान दुनिया के ख़तरनाक ममालिक में शुमार है जहाँ पे सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ साथ कत्ल भी किया जा रहा है। इस किस्म के कई वाक़यात हो रहे हैं। तो लाहौर प्रेस क्लब इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता है, और हम ये समझते हैं कि इस किस्म के वाक़या को थमना चाहिए। बहुत शुक्रिया अफजाल साहब। जी नाज़रीन, आपने सहाफ़ियों की, लाहौर के सहाफ़ियों की गुफ्तगू सुनी। उनके मुताबिक कि सवाल करना सहाफ़ी का हक़ है, चाहे जमहूरी दौर हो या आमरीत का दौर, लेकिन सवाल करना सहाफ़ी का हक़ है, जवाब देना सियासतदान का, क्योंकि सियासतदान ख़ुद को आवाम का खिदमत गुजार समझते हैं और आवाम की खिदमत के दावे करते हैं। तो जब उनसे सवाल किया जाता है तो फिर उनको नापसंदीदा भी गुजरता है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ, ताकि सहाफ़ी जो हैं वो आज़ाद, एक माशरे की एक आँख होती है सहाफ़ी, एक माशरे के कान का जो किरदार अदा करते हैं, ताकि वो अपने फ़राइज़ जो हैं वो मुकम्मल ईमानदारी के साथ निभाते रहें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।